ہم کہتے جیسس خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا. لیکن کوئی اگر پوچھے گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. السلام علیکم دوستو آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل انضمام ٹاکس میں. دوستو آج کا ویڈیو ریئیکشن لائے ہیں جو کہ یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو معلوم چلے گا عیسائی لوگوں کے بارے میں. جو لوگ عیسائی لوگ یہ کافی زیادہ کنفیوژن ہے کہ وہ لوگ جیزس کو بھگوان سمجھتے ہیں اور بھگوان بھی مانتے ہیں، جبکہ حالانکہ اس نے کبھی کہا بھی نہیں کتاب کے اندر کہ ہم بھگوان ہیں. یہ بات آپ کو آگے ویڈیو میں معلوم چلے گا. اور اس کے بارے میں جنرل ورک کامیڈی جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں جیزس کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے ہی تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ جیزس کون ہے، وہ بھگوان ہے یا نہیں ہے. دوستو ویڈیو کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے. آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں سچائی. کئی لوگ یسوع کو نہیں جانتے، جیسس کو نہیں جانتے. خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا. ہم کہتے جیسس خدا ہے، خدا کا بیٹا خدا، گاڈ کا بیٹا گاڈ. انہوں نے خود کہا، چیلوں نے کہا آپ اپنے پتا سے ہمیں ملائیے. بیدار ہو کے کنٹال کے بولا میرے کو دیکھ لیے تو سمجھو پتا کو دیکھ لیے. بول دیا، ریویل بھی کر دیا انہوں نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جو یسوع کو نہیں جانتا ہے پوری دنیا میں، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جیزس کی بات کرتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Son of God. Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? سسٹر این Yeah. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، Yes. خدا کا بیٹا. اور ایک کوٹیشن ہے کہ اللہ نے اپنے بلاوڈ سن کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل کے اندر گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں گاڈ ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں خدا نے کئی لوگوں کو بیٹا کہا ہے. مثال کے طور پہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہا ہے ایڈم از دا سن آف گاڈ. بائبل میں افرایم از دا سن آف گاڈ، اسرائیل از سن آف گاڈ. آل دوز آر لیڈ بائی دا اسپرٹ آف گاڈ، دے آر سنز آف گاڈ. جو بھی کوئی اللہ کے احکام پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کے بچے یا اللہ کے بیٹے. بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا ہے خدا کا بیٹا، افرایم کو کہا گیا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. جو بھی کوئی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بچے. اور یہ عام الفاظ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جو اعتراض ہے، the objection we have is the quotation جو مشنری لوگ کہتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. جو بہن کہنا چاہتی تھی اس نے ریفرنس نہیں دی، بٹ وہ کیا کہنا چاہتی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے، کمپیئرڈ ریلیجن. وہ جو کوٹ کرنا چاہتی تھی وہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں جہاں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world. خدا نے دنیا کو اتنا چاہا کہ اس نے اپنا جنا ہوا بیٹا، God so loved the world that he gave his only begotten son. اس نے اپنا ایک لوتا جنا ہوا بیٹا، جو بھی اس بیٹے میں مانتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا اینڈ وہ جنت میں جائے گا.
For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा. ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन. ये एक मिलावट है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं. ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा. ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है. तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे. हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे. तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा नहीं जनता. क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की. एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके कई ऊपर है. जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. तो ये 4 लाइन्स है, 4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया. और ये चीज़ बाइबल में भी है. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए. हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे. हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट. हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से. हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से. हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं. लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं. और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो. अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ. मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है. मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूँ. अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ. अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं. लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स
with the spirit of God. मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, I with the finger of God cast out devils, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। ईसा अलैहि सलाम ने कहा है I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। As I hear I judge, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ, and my judgment is just, और मेरा फैसला हक का है। For I seek not my will but the will of my Father, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हु हैज सेंट मी। जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये ज़िंदगी अमन की है, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by and you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो। जीसस ऑफ नाज़रेथ, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके ज़रिए निशानी दिखाए, मौजज़ा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर? दोस्तों, ये इस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो ईसाई हैं और जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो से समझने की ये बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह खुदा नहीं है, वो अल्लाह के एक भेजे हुए पैगम्बर है। ये आपकी बाइबिल किताब, आपकी जो किताब है आसमानी और बाइबिल किताब, वो खुद कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम किताब के अंदर कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।